1917th episode of नागपुर's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात Women of the Year के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique, one of the most beautiful boutiques in Nagpur city, and a legacy which has been taken forward. Pehnava एक ऐसा स्टोर जहां पर महिलाएं जाती तो हैं बस आंखों में सपने लिए कि they'll get one of the best dresses on the planet, but उनके सपने सच हो जाते हैं, है ना. तो पहनावा इज वेटिंग फॉर यू टू कम टू हैव अ ग्रेट शॉपिंग फॉर योर 31st नाइट की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो यू शुड शॉप एट पहनावा. A big thank you to UDS, which is Universal Design Studio, which helps you make your home look nice. Nagpur ka hospital, Orange City Hospital. We Herbs, one of the herbal products which makes you look beautiful and keeps your skin secured. Can't forget to thank Stylux Kitchens and Wardrobes. मेरी आज की जो मेहमान है, she is a holistic health coach. She is a mother, she is a wife, she is a great bhabhi, and one of the great souls on the planet to whom a lot of people look upon and like, as a matter of fact, because she has always been kind and nice to people. Please welcome my guest today. Please welcome Mrs. Jyoti Kriplani. Bhabhi, namaskar. Namaskar. How are you? I am good. It's good. It's always happy to meet you. Thank you so much, and thank you so much for this wonderful introduction. So, coming from a family of people into education, Amravati girl making it big in Nagpur when it comes to helping people with health, है ना. तो शुरुआत कहाँ से करें? अमरावती से शुरू करते हैं, है ना. कैसा रहा बचपन? अमरावती के दिन जब याद आते हैं तो क्या क्या याद आता है? बचपन किसको अच्छा नहीं लगता है. Carefree life. And I was brought in an environment where education was the most important thing, and a very disciplined environment, of course. लेकिन जब when you were a child, did you ever dream that one day you'll get into the health fraternity, you'll work for people when it comes to changing their lifestyle and helping them come out of diseases or life disorders? Honestly, I didn't think of, but my father wanted some person to be in this field. ये जब हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ कोच के, जी, पहली बात तो ये हेल्थ कोच, ये टर्म लोगों को बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि व्हाट इज अ हेल्थ कोच. See, I'll explain it simply. आपने डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट तो सुना होगा. that is only a part of our services. हम लोग हेल्थ को जो कंसिडर करते हैं सिर्फ आपके डाइट और फूड ही नहीं है. It depends on several factors. It depends on your stress level, your mental level, your sleep pattern, the exercise, and the environment in which you are surrounded by people. तो हेल्थ मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है. हेल्थ में काफी फैक्टर्स है. All these factors together, when they are aligned, only then you enjoy a healthy life. And here comes the role of a health coach. नहीं, जब हम जैसे हेल्थ के ऊपर में जब हम बात करते हैं तो जिस किस्म का एनवायरनमेंट है, हम ये महसूस करें कि दो किस्म के लोग हमको नजर आते हैं. एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हेल्थ को ध्यान ही नहीं दे रहे. जिस किस्म का खान पान, जिस किस्म की जिंदगी वो जी रहे हैं, उनको अपने हेल्थ के प्रति कोई संवेदना या कोई कंसर्न नहीं दिखता. और दूसरी तरफ हम ऐसे लोग देखते हैं जिनकी सुबह से जिंदगी योगा, वर्कआउट, हेल्थ, फिटनेस, प्रोटीन शेक्स और ये सब से शुरू हो जाती है. आप जब ये दोनों तरफ के लोगों को देखती है तो क्या सोचती हैं? होता क्या है ना, एक्चुअली आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल. आप अगर किसी शादी में इनवाइटेड है जी, तो आप वहां कैसे खाना खाते हो? दिल खोल के हर स्टॉल पे जाओगे, हर चीज एंजॉय करोगे जी. आप कोई चीज छोड़ोगे नहीं जी. बट ऑन द अदर हैंड, कभी आप अपनी फैमिली को डिनर पे ले जा रहे हो किसी रेस्टोरेंट में, तो वहां ऐसा होता है? नहीं होता है, बिकॉज वहां पे हमको पे करना है जी. तो लुकिंग ऑन द रादर देन लुकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन्यू, वी पे अटेंशन ऑन द राइट साइड कि क्या हमारे बजट में है. तो बोलने का तात्पर्य ये है
कि व्हेन यू हैव टू पे यू बिकम वेरी कॉन्शियस कि मेरा पैसा वेस्ट नहीं हो, मुझे हर चीज नहीं खानी है, लिमिटेड खानी है. सेम इज विथ हेल्थ. Unfortunately, God has given this given this health free of cost. उन्होंने हमसे कोई टैक्स नहीं लिया, कोई फीस नहीं लिया, तो वी आर टेकिंग आवर बॉडी मतलब एज अ ग्रांटेड. तो ये फर्क होता है, जो लोग बिंदास जी रहे हैं, कुछ भी खाओ, कैसे भी जियो. तो दिस इज व्हाट आई फील. And the people who are taking good care, they realize कि this body is the only thing जो हमारी आखिरी सांस तक हमको साथ देने वाली है. लेकिन जब हेल्थ के सेक्टर में हम और ज्यादा थोड़ा डीपर जाएं, तो एक तरीका जो लोगों का ये भी है अपने हेल्थ का ध्यान देने का, वो है सर्जरी करा लो. What do you think about it? That is totally nuisance, I can say. आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो. जो चीज सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस करके हो सकती है, why are you torturing your body? And anything that is artificial, of course, it's going to give you side effects and long-term, lifelong side effects. So better to correct your lifestyle rather than going for all these things. Unless and until, of course, it's really important. You are suffering, it's like life-saving, then you should think of it. एक उर्दू में कहावत है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते. इतने सालों तक आपने पढ़ाई करी, आपने इंटर्नशिप करी, आप हर चीज के लिए तैयार थी, लेकिन आपने PHMS किया, है ना, लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया काम करने में? सोशल वर्क में आप हमेशा रही हैं, समाज के लिए आपने बहुत काम किए हैं. रोटरी क्लब ऑफ नागपुर नॉर्थ की फ्लैग बैरियर हैं आप. तो ये इतना वक्त क्यों लग गया कि आप प्रोफेशनली काम करना शुरू करें? Was there something which was stopping? Yeah, maybe my family responsibilities, everything was there. मतलब I always had in my mind कि कुछ ना कुछ करना है, but कई बार क्या होता है ना, इंसान कई बार चोट खा के सीखता है. So same was with me. Like at a very young age, I was labeled as hypertensive. मुझे BP की प्रॉब्लम शुरू हुई, but I couldn't accept it. एंड प्रिंसिपल यही होता है, जो चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो आपको चेंज करना चाहिए. सो व्हाट आई रियलाइज कि छोटे छोटे चेंजेस मैंने सिर्फ अपने डाइट में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने एक्सरसाइज शुरू किया रेगुलर, छोटे छोटे मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस शुरू किए. तो माय BP मेडिसिन, मतलब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि पूरी तरह से बंद हो गई, बट काफी हद तक मैंने कम किया. देन आई रियलाइज कि अगर ये मैं कर सकती हूँ छोटे छोटे चेंजेस से, तो ये चीज मुझे प्रमोट करना चाहिए. एंड दैट मेड मी जंपिंग इनटू दिस फील्ड. मैंने फिर साइंटिफिकली इसको स्टडी किया, आई डिड माय सर्टिफिकेशन, एंड देन आई एम हियर एट योर सर्विस. मेरे को एक चीज बताइए कि जब पिछले 2 सालों से आप काम कर रही हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, अपने हेल्थ में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव भी देख रहे हैं, हाउ डू यू फील? इट फील्स ग्रेट. आई फील एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग रियली, ऐसा बोलते हैं ना, जो दिल को सेटिस्फेक्शन दे. This gives me a lot of satisfaction because I strongly believe that your health is your biggest asset. अगर आपको ये अवेयरनेस आ जाए, एंड जो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ स्प्रेड करने की, देन नथिंग लाइक दैट. आप कितना भी वेल्थ कमा लो, कितना भी नेम फेम कमा लो, अगर इफ यू लूज हेल्थ यू लूज एवरीथिंग. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस. सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड कम टू ज्योति कृपलानी? what problems the person should have? See, usually what kind of clients I get is people struggling with weight loss. सब कुछ ट्राई कर लिया, बट वो वेट लॉस हो ही नहीं रहा है. सो मेनली व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग विथ लूजिंग वेट इन अ वेरी लाइक होलिस्टिक वे, सस्टेनेबल तरीके से, फास्ट वाला, क्विक वाला तो आपको गूगल पे बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे, बट सही तरीके से, विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ. इफ यू रियली वांट गुड रिजल्ट्स, देन ऑफ कोर्स यू शुड कम टू मी. ऑल्सो ऐसे लोग जिन्होंने ये मन बना लिया है कि अरे ये BP की दवाई अब तो जिंदगी भर नहीं छूटेगी, थायराइड ये तो दवाई मुझे मरते दम तक खानी पड़ेगी. तो अगर आपका ये माइंडसेट है, तो लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल गलत है. यू कैन गेट रिड ऑफ मेडिसिन सिंपली बाय सम लाइफस्टाइल करेक्शंस. So basically the process of coming to you, which
इज कि आपके पास आएंगे, आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगी, आप खान पान में चेंजेस करेंगी, एंड देन इट विल बी मॉनिटर्ड. विल इट बी मॉनिटर्ड? Yeah, of course. I usually encourage people to meet me every 8 to 10 days. So you can monitor that. Yeah, so that they are accountable to me, and कहीं भी गलत जा रहे हैं तो immediately I can guide them. तो आप लोगों को भी हेल्थ के ऊपर में इतना कुछ हेल्प आउट कर रही हैं, Yeah. लोगों को सही रास्ता दिखा रही हैं. गोलगप्पे खाते हुए कभी पकड़ी गई आप? I am a foodie, but I know, of course, I am a foodie and चाट तो बहुत पसंद है, but then I know how to balance it out. You know how to Because balance. मेरा तरीका ये नहीं है कि आपको अपना फेवरेट फूड हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा. वो रहे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी वेट लॉस करना, बट एंजॉयिंग योर फेवरेट फूड, हाउ यू कैन स्टे हेल्दी, दैट्स माई मंत्रा. ये हमेशा देखा गया है कि वन ऑफ the men of honor, I always say, people who are God sent. Rajesh Kriplani bhaiya is one of them. He is one person to whom everybody loves and everybody respects. How is it being his wife, or probably one person who's behind his success? How do you see that? See, actually, not only for you, but for me also, he's my मोटिवेटिंग फैक्टर, ही इज माई गाइडिंग स्टार. एंड जब भी मैं खुद लो फील करती हूँ, ही इज द वन जो मुझे फिर से चार्ज कर देते हैं. सो आई एम ब्लेस्ड टू बी हिज वाइफ. You also have 2 sons. How do they look at your profession now? How do they look at it? नहीं, दे ऑफ कोर्स एंजॉयिंग इट, एंड इनडायरेक्टली वो भी अवेयर हो ही रहे हैं. ऑफ कोर्स वो एक स्टेज पे है जहां थोड़ा कंट्रोल करना खुद को मुश्किल है, बट बैक ऑफ द माइंड आई नो दे आर रियलाइजिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अब चूंकि ये प्रोफेशन इज सूटिंग यू, यू आर doing well, people are coming to you, people are loving your work, following you. What next? अभी इसको कहाँ तक ले जाना है, क्या क्या चीजें करनी है? बस मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एम यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है. जो ये हॉस्पिटल्स इतनी ग्रो हो रही है, जो न्यू मेडिसिन आ रही है, हम उसको कहीं फुल स्टॉप लगाएं. एटलीस्ट आर एम इज दैट. अवेयरनेस बहुत जरूरी है. समाज में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं. हम देख रहे हैं कि एक वक्त था जब फैमिली कोर्ट में लोग नजर नहीं आते थे, और वहां का जो स्टाफ था वो इंतजार करता था कि कभी तो कोई डिवोर्स के लिए आ जाए. सालों में एक डिवोर्स केस आता था. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ समाज में ये एक नई चीज देख रहे हैं, जहां पर लोग अगर एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो वो तुरंत में तलाक लेने की इसमें लग जाते हैं. क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज यू बीन मैरिड फॉर हाउ मेनी इयर्स नाउ? 23 years of marriage. What do you think? See, I know this is a sad fact, but इसके पीछे मुझे जो लगता है ना, अब लोगों का जो फोकस है ना वो हम से मैं पे आ गया है. मेरी जिंदगी, मेरी इच्छाएं, मेरी लाइफ. तो वो जो मैं है वो सारे प्रॉब्लम की जड़ है. पहले होता था हमारी लाइफ, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे बच्चे, हमारी खुशियां. जी. तो वो जो हम से मैं पे आ गया है, जी, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिवोर्सेस, जो रेट बढ़ रहा है. लड़कियों के कंसीविंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल है. पीसीओडी जैसे इश्यूज बढ़ रहे हैं. उनके बहुत सारे सडन हार्मोनिकल चेंजेस देख रहे हैं. आपके पास बहुत सारी लेडीज हैं जो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को लेकर आती हैं. क्या कारण हो सकता है कि सडनली, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स महिलाओं में नहीं था पहले. गायनेकोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज देखी जाती थी, और वो है जब आप माँ बनने वाली हो या फिर आपकी डिलीवरी है. अब देयर आर issues which are bigger issues than just conceiving. What's your thought on that? See, this is again what I'm saying कि वो मॉडर्न, आजकल हर कोई अपने आप को मॉडर्न कहलाना चाहता है. उस चक्कर में लड़कियों ने अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़ के रखी है. जब मतलब पहले आप देखेंगे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये दिस वाज अ मेंस थिंग. आज इट हैज बिकम इक्वल. जी. आज सेडेंटरी लाइफ एंड वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो ये सारी चीजें हैं जो इंसान मॉडर्न कहलाने के चक्कर में अपना रहा है, स्पेशली गर्ल्स. दीज आर द थिंग्स, आई थिंक दीज आर कॉजिंग मोर हेल्थ इश्यूज इन गर्ल्स. तो अब चूंकि लड़कियों में भी ये तकलीफें हो रही हैं, क्या आने वाले वक्त में IVF और IRS ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं
फॉर अ चाइल्ड, क्या ये भी बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आज हमने उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, इट्स गोइंग टू ग्रो, बिकॉज गर्ल्स को ये बहुत जरूरी है अवेयर होना, लाइक उनकी बॉडी के साथ उनको खिलवाड़ करना एक्चुअली अलाउड नहीं है। Child obesity is also in a very alarming situation. Yeah. Schools में बच्चे जिस किस्म का टिफिन बॉक्स भी ले जा रहे हैं, टीचर्स हैरान है, परेशान है, और पेरेंट्स को बार बार टीचर्स, पहले बच्चों, हम जब छोटे थे तब हमारी कंप्लेंट्स आती थी, अब हम देख रहे हैं कि बच्चों के फूड के ऊपर में टीचर्स कंप्लेंट कर रही हैं, तो जो एक बड़ा इशू है. व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? यस, डेफिनेटली, दिस इज वेरी सैड अगेन। चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ते जा रहा है। इसके काफी फैक्टर्स है। एक तो ये ऑफकोर्स ईटिंग हैबिट्स। आज बच्चों के लिए बर्गर, पिज्जा हैज बिकम वेरी नॉर्मल। पहले क्या होता था, घर में मिठाई कब आती थी? दिवाली है, घर में शादी है, वंस इन अ वाइल। आज इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल एक्टिविटी, जो बच्चे सारा दिन बाहर खेलते थे, माँ को पकड़ के बुला के लाना पड़ता था, आज उल्टा हो गया। आज मदर्स को धक्का देना पड़ता है, जाओ बाहर जाओ। दे आर सो स्टक विद द पीसीज एंड विद द स्क्रीन, तो वो मूवमेंट ही नहीं हो रही है उनकी बॉडी की। तो ऑल दिस इज लीडिंग टू चाइल्डहुड ओबेसिटी ऑफ कोर्स। अब बड़ा अच्छा सक्सेसफुल करियर चल रहा है, ऐसी कोई चीज जो आपको ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज अगेन आई इंसिस्ट कि यही एक चीज है, ये आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी प्रॉपर्टीज, ये आपका साथ नहीं देने वाली है। अगर लास्ट मोमेंट तक, आखिरी सांस तक कोई साथ देगा और आप अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहते हैं, तो हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर जिंदगी की, ये मेरा आखिरी सवाल, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर यह नाम लिखा गया, ज्योति राजेश कृपलानी, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? I would say live your life to your fullest, because ये एक ही बार चांस मिलता है। इतनी अच्छी लाइफ आपको सिर्फ एक बार मिलेगी। Live to the fullest. And don't live with diseases. Yeah, of course. Live to the fullest. Live a healthy life. Healthy life. To live a fullest life, of course, you need to be healthy. Absolutely. ज्योति कृपलानी जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर और मोटिवेट किया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीबडीज लाइफ इज लाइफ, एंड वो है हेल्थ। अगर वो हेल्थ रहेगी तो लाइफ रहेगी। Definitely. नहीं तो अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं और ऐसे पेशेंट से मिलें जो कई महीनों से, सालों से हॉस्पिटल में कैद हैं, अगर आप मुझे सिर्फ इतना पूछेंगे कि आपको एक चीज क्या चाहिए, तो वो कहेंगे कि एक वो जिंदगी जो इस हॉस्पिटल के बाहर है। आप जो काम कर रही हैं उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बदलाव आ रहा है। लोग बहुत सारी लाइफ डिसऑर्डर्स से, डिजीजेस से दूर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, प्रोफेशनली ही सही, लेकिन ये काम बड़ा अच्छा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लोग अगर इसको समझें तो वाकई में उनकी जिंदगी में वो ज्योति का काम आप कर रही हैं, जिस ज्योति में उम्मीद है, और ये वो ज्योति है जो किसी तूफान के सामने में बुझेगी नहीं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिसेस ज्योति कृपलानी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बीच में एक बात हुई थी जब हम चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो ज्योति मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब बच्चे मैदान में खेलते रहते थे और माएं बच्चों के पीछे वहां भागती थी कि चलो घर चलो, और अब वो वक्त है जब माओं को बच्चों को धक्का देना पड़ रहा है कि आप प्लीज घर के बाहर जाओ, आप प्लीज बाहर जाकर खेलो। देखिए, वक्त का पहिया जो है वो पलटता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहले भी हेल्थ को की जागरूकता करने के लिए लोग थे और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले माएं बच्चों को लेके उतनी कंसर्न रहती थी, आज की माएं भी अपने बच्चों को लेके कंसर्न नहीं है। पता है उनका कंसर्न क्या है? कि किसी टीचर ने उनको आंख क्यों दिखा दी, किसी टीचर ने उनको थप्पड़ कैसे मार दिया, पिंच कैसे कर दिया, हाउ कैन यू।
दुर्भाग्य की बात यह है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ जितना वक्त बिताती है उससे कहीं ज्यादा वक्त एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ बिताती है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी एक माँ की अपने बच्चे को बड़ा करने की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी एक टीचर को अपने स्टूडेंट को ज्ञान देने की है, विद्या देने की है, नॉलेज देने की है। मुझे नहीं पता कि ये ह्यूमन राइट्स वाले या सरकार में बैठे लोग पता नहीं क्यों, लेकिन वो दौर क्यों नहीं वापस लेकर आते जब एक टीचर सिर्फ देख लेती थी और बच्चा किताबों में घुस जाते था। मतलब आप और मैं जो आज इस उम्र के दराज में हैं, जो 40 साल प्लस की उम्र रखते हैं, शायद वो जब अपना स्कूल याद करते हैं तो वो सब टीचर्स को हम याद करते हैं जो स्ट्रिक्ट थे। लेकिन वो स्ट्रिक्ट थे इसलिए शायद आज हम जीवन में वो कर पा रहे हैं जो शायद हम कर पा रहे हैं या शायद नहीं कर पाते। हम ये जनरेशन को इसीलिए उस कंसर्न की नज़र से देखते हैं, हम उनको बड़ा कमज़ोर पाते हैं क्योंकि उन्हें कमज़ोर बना भी हम रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, पर सोचने की बात है। पर जब जागे तब सवेरा। हेल्थ को लेकर ज्योति कृपलानी अपनी कोशिश में लगी हुई है। अगर आपको भी कुछ ऐसे लाइफ डिसऑर्डर्स हैं तो आप उनसे ज़रूर कनेक्ट करें और आप उनके माध्यम से वो रास्ते पे चलें जिसमें आपकी ज़िंदगी में दवाइयाँ, गोलियाँ, डॉक्टर के विजिट्स, टेस्ट ये सब नहीं रहेंगे। एक अच्छी ज़िंदगी रहेगी और एक ऐसी ज़िंदगी जो आपको बस खुश रखेगी। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक ऐसी बेटी है जो आपको मीठा खाने से रोकती है, टोकती है, आपको तला तुला खाने से रोकती है, टोकती है और आपको हेल्थ के बेनिफिट समझाती है और वो कोशिश ये करती है कि जिससे भी वो मिले उसको वो ऐसी कुछ बात बताती है जिससे उसकी उम्र बढ़ जाती है, तो समझिए वो ज्योति कृपलानी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।